چیک کر لیتی ہوں کہ لائیو ہو گئے ہم. جی السلام علیکم. میرا نام عظمیٰ حفیظ ہے اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں نگت، جنہوں نے آج مجھے جوائن کیا. نگت آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے آج میرے سیشن کو جوائن کیا ہے. اور نگت کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں. نگت جو ہیں وہ کراچی سے بلونگ کرتی ہیں اور کافی عرصے سے جو ہے وہ اپنا بزنس رن کر رہی ہیں، ہوم آن لائن بزنس. اور آپ نے جو ہے وہ کافی عرصے سے لائک اسٹارٹ کیا ہے کام، اور اس میں آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بزنس کو آپ نے رن کیا. تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور ہمارے جتنی بھی باقی فیمیلز ہیں جو یہ کام کرنا چاہتی ہیں وہ بھی آپ سے سیکھ سکیں. تو آپ نکت اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، انٹروڈکشن کروا دیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور ویسے تو خیر میں کافی ٹائم سے بہت ساری خواتین کو بتا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، لیکن جیسے آپ نے بہت آپ کا تھا کہ نہیں ہم اور بھی پبلکلی اس چیز کو کریں، تو بہت اچھا انیشیٹو تھا آپ کا اور میں نے آپ کو اس طرح جوائن کیا. اور بیسیکلی آئی ایم فرام کراچی. میری بیسک ایجوکیشن وغیرہ سب کچھ ٹوٹل کراچی سے ہے. میرا اسٹارٹ اپ بھی ٹوٹل کراچی سے ہے. اور میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا بہت ٹائم ہو چکا، آلموسٹ 17-18 ایئرس ورکنگ میری کرتے ہوئے ہو چکے ہیں مجھے. میں نے جوائن کیا جب سب سے پہلے گریجویشن کے ساتھ ہی میں نے ایک پرائیویٹ پارٹ ٹائم، ویسے ہی چھٹیاں تھیں تو میں نے ایک چھوٹا سا آفس تھا اس میں ایز اے آپریٹر جاب کی. پھر اتفاق سے میری ایک فرینڈ تھی اور وہ ایک کراچی کا ایک کافی مشہور انسٹیٹیوٹ ہے میمن فاؤنڈیشن، تو وہاں اس کا جانا آنا رہتا تھا اور وہ کورس وغیرہ کر رہی تھی. تو وہ وہاں کورس کری، وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ لاسٹ جو ان کا ڈسپلے ہوتا ہے اس دن چلیے. بس اس دن میں گئی ہوں اور پھر شاید میں اس کے بعد سب کچھ بھول گئی. اور پھر بس میں نے سمجھے وہاں جوائن کر لیا میمن فاؤنڈیشن. وہاں میں نے لرننگ کی اور اسی دوران میمن فاؤنڈیشن کے جو ایئرلی ایگزیبیشن ہوتے ہیں تو اس میں نے پارٹ لیا. تو وہاں پر ماشاء اللہ مجھے ٹیچر سے بہت اچھی سپورٹ ملی. مجھے ٹیچرز نے بہت انکریج کیا، بہت زیادہ میرے ورک کو بھی پسند کیا. اور وہ ہمارا جو ایگزیبیشن تھا کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوا تھا، وہ کافی پذیرائی ملی، بہت ماشاء اللہ لوگوں کو پسند آیا میرا. وہیں سے ٹیچرز نے مجھے ایز اے ٹرینر اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہائر کر لیا. پھر ہم ان کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ سب سکھانا شروع کر دیا. شادی ہو گئی. اس کے بعد شادی کے بعد بچوں میں تھوڑی مصروفیت رہی 1-2 سال. پھر 2-4 سال بعد پھر دوبارہ سے میں نے فیس بک پیج بنایا اور میری اسپیشلٹی تھی ڈو میڈ ہینڈ میڈ جیولری نا. تو میں نے اسی کے لیے اسٹارٹ اپ لیا تھا. تو پیج اس ٹائم میں نے بنایا 2008، آئی تھنک 2008 میں. اور اس کے 2008-2009 میں. اور اس کے بعد وہ پیج ماشاء اللہ میرا کافی وہاں سے میرے کسٹمرز تھے. پاکستان سے زیادہ میرے کسٹمر اس وقت بھی دبئی سے تھیں پاکستانی خواتین، لیکن تھیں وہ ان کے اپنا بوتیکس تھے اور دبئی میں. تو انہوں نے مجھ سے میری ڈفرینٹ آرٹیکلس کو لیا. وہیں سے کچھ فرینڈس بنے جنہوں نے ٹی وی کے لیے مجھے ہائر کیا کہ بھئی آئیں آپ ہمیں وہاں بھی کلاسز دیں، ورک شاپس وغیرہ کریں. تو پھر تھوڑا بہت کچھ کام ہم نے کافی ٹی وی چینلز کے ساتھ CNBC، ARY، ذوق، میٹرو، ڈفرینٹ کافی چینلز کے ساتھ
छोटे छोटे क्लासेस और डिफरेंट प्रोग्राम्स में शिरकत करती रही। और फिर अब समझे तकरीबन 4-5 साल पहले, मतलब मैं जब तक जस्ट इंडिविजुअली कर रही थी ये काम, सब कुछ मैं खुद कर रही थी, लेकिन 4-5 साल पहले मैंने ये चीज़ देखी कि माशाल्लाह फिर उसके साथ मेरी वर्किंग, जब मैंने टीम के साथ की तो मुख्तलिफ एनजीओज के साथ भी मुझे काफ़ी, जब मैं एक्सपो एग्जीबिशन करती रही तो वहाँ पर एग्जीबिशन में मुझे काफ़ी डिफरेंट एनजीओज खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से जो वर्कशॉप्स करवाते थे या कोर्सेज करवाते थे, तो मैं उनके साथ काम करती रही। तो जब उन्होंने उनकी वर्किंग जो है माशाल्लाह एनजीओ के साथ जो मेरी वर्किंग रही, तो ये सिखाना खवातीन को, खाली ज्वेलरी मेकिंग नहीं था, बहुत सारी स्किल्स थी। तो वहाँ से मतलब मेरा जो माइंड था इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि हमारे यहाँ खवातीन, सबसे पहले मसला तो एक ये है कि बहुत सी खवातीन, घरेलू खवातीन जो कि ना तो तालीम होती है जिनके पास, सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल होती है। हम जो खवातीन, मैंने जैसे इंस्टीट्यूट जाके सीख लिया, बहुत सी खवातीन इस तरह से सीख रही होती हैं, लड़कियां सीख रही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मसला तो उन खवातीन के साथ होती है ना जिनके पास कोई स्किल होती है और ना ही तालीम है, अब वो करें तो क्या करें। तो मैं जब एनजीओज में काम किया तो मैंने एक चीज़ सीखी जो कि मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, कि किसी को आटा देने के बजाय गंदम, खुद आटा, यानी कि गंदम ग्रो करे और खुद आटा बनाए, तो इससे कोई भी शख्स, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है। तो तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया है कि जो कुछ मैंने सीखा है, बहुत सारी स्किल्स हैं, तो मैंने उन छोटे छोटे से कामों को डिफरेंट खवातीन जो कि अभी, जो मैंने तकरीबन 6 साल पहले किया, तो उसमें ये था कि वो गैर तालीमी याफ्ता थी, उनको पैसे देने के बजाय उनको कहा कि हम ये काम आपको सिखाते हैं। खैर उनको मैंने सिखाया, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने लर्निंग की, बहुत अच्छा सीखा। उसके बाद वो क्या करें, अब सिखाने के बाद अब उनकी प्रोडक्ट मार्केट कैसे जाएगी, तो वो मार्केट भी मैंने ही स्टार्ट किया, फिर पेज एक बनाया और उनको जो कुछ उनसे प्रोडक्ट में तैयार करवाती। फिर दूसरी चीज़ ये कि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था कि अगर हम उनसे कोई प्रोडक्ट बनवा भी जाएं तो चले ठीक है मैं मार्केट भी ले जाऊं, तो वो आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाएं कैसे। तो मैंने ये किया कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करके उनसे डिफरेंट आर्टिकल्स बनवाए, उनको मार्केट किया। और माशाल्लाह एक टाइम उनको लेकिन बॉन्ड किया कि जी आप मेरे साथ इतना टाइम काम करें, आप खुद इसके बाद मेरे साथ मार्केट जाएं, अगर हम मार्केट कर रहे हैं मेरे साथ बैठती थी। और तकरीबन माशाल्लाह अब 3-4 खवातीन जो मेरे साथ रही और माशाल्लाह अपना अपना काम वो खुद कर रही हैं, बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंटली। उन्हें ये भी पता है कि हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरह से मार्केट करना है। और कोई ऐसी खवातीन, वो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी एजुकेशन है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ इतनी आसानी है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन इसका यूज़ हम सही नहीं करते। तो बस ये था कि थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पढ़ी लिखी खवातीन को तो बहुत आसान है ये चीज़। हालांकि माशाल्लाह मैं देखती हूँ ग्रुप्स हैं हमारे डिफरेंट, तो उसमें खवातीन ऑनलाइन सेलिंग कर रही हैं। मैं उनसे कहती हूँ आप पेज बनाएं अपना, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, खाली फेसबुक नहीं है, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बट उनका थोड़ा सा यूज को थोड़ा सा समझना है। और बस थोड़ी सी फैमिली से सपोर्ट चाहिए होती है।
तो ये निखिल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा डिटेल इंट्रोडक्शन दिया अपना। और जैसे आपने बताया कि आपने 18 ईयर्स की एज में एज अ टेलीफोन ऑपरेटर स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आपको आपको सेटिस्फाई नहीं हुई और आपने कहा नहीं, मैंने तो अपने पैशन की तरफ जाना है। और फिर आपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो आपके अंदर एक चीज़ थी कि नहीं, मेरे अंदर तो क्रिएटिविटी है, तो आपने अपने आप को उसकी तरफ डाइवर्ट किया और फ्रॉम 9 to 5 वाली जॉब को छोड़ के आपने अपने घर में रहकर जो है वो बिज़नेस को प्रेफर किया। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो स्कूल्स में जॉब करती हैं, डिफरेंट ऑफिसेज में जॉब करती हैं, और बड़ी टफ जो है उनकी रूटीन होती है, जिसकी वजह से वो ना घर मैनेज कर सक रही होती हैं, ना बच्चों को मैनेज कर सक रही होती हैं, और बड़ी एक स्ट्रेसफुल सी लाइफ होती है, घर में भी उनकी एक स्ट्रेस चल रहा होता है। तो उनके लिए आप एक एग्जाम्पल हैं कि आपकी तरह वो भी अपने घरों को मैनेज कर सकती हैं, घर में ही बैठ के वो इतने अच्छे जो है वो बिजनेसेस रन कर सकती हैं। और मेनली एक एफपी पेज के थ्रू आपने अपने इतनी कस्टमर रीच जो है वो गेन की है बाहर। जैसे कि हम मोस्टली ना हम फोकस कर रहे होते हैं कि हम लोकल ही काम देख रहे होते हैं, लेकिन एफपी की रीच और बाकी प्लेटफॉर्म्स की रीच इतनी है कि आप बाहर ममालिक में भी अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। अच्छा निकट, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ घरों की जो है वो इन्वायरमेंट ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे ख़वातीन जो है वो इजीली काम कर सकें। तो आप क्या कहती हैं, और किस तरह से, जैसे आपने तो अपने माशाल्लाह से बच्चों के साथ भी सारा मैनेज किया, और आज आपके बच्चे ही आपके हेल्पर्स बन गए हैं, वो बल्कि आपको सिखा रहे हैं, आपके साथ हेल्प करवा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके भी बच्चे उनके साथ काम करवा सकते हैं। उन्होंने एक इन्वायरमेंट घर की क्रिएट कर दी है कि वो सारे मिल के काम करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये ख़वातीन कैसे अपने घरेलू जो इन्वायरमेंट्स हैं उनको मैनेज करके अपने जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करें, और साथ साथ अपने बिजनेसेस को भी रन करें? बिल्कुल बहुत अच्छी बात जो मतलब पर्सनली मुझे जो है ना खुद अपने आप को बॉस बनाए अपने काम में आप बॉस हैं, 9 to 5 वाली जॉब में आप हमेशा मातहत रहेंगे। और शायद मुझे इतना टाइम इस तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हुए हो गया। तो मतलब मैं अगर मुझे कोई कहता है कि आप यहाँ पर आए और काम करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि मुझे बड़ा लगता है कि मैं मतलब किसी के साथ बॉन्ड होके, हाँ वर्कशॉप्स होती हैं जिस तरह से वर्कशॉप मैं करवाती हूँ कि 5 डेज 7 डेज 15 डेज की वर्कशॉप, वो मैं बड़ी अपना इजीली करवाती हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन है, मुझे सिखाने का शौक है। और स्टिल आई एम लर्न कि मुझे, मैं नहीं समझती मेरी लर्निंग भी खत्म हुई है, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जी अ, हमारे घर का इन्वायरमेंट ये हमें खुद बनाना है। लेकिन इसमें सेक्रीफाइस बहुत सारी जगह पे हम हमें करना होता है। मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 4 साल 4.5 साल का बेटा था मेरा। और बच्चों के साथ वैसे ही छोटे बच्चों की जो अम्माएं होती है ना उनकी नींद तो वैसे ही बिल्कुल खत्म हो जाती है मतलब सोने का तो तसव्वुर लगता है कि बच्चे जब 8-10 साल के 7 साल 8 साल के होंगे, हाँ जब थोड़ा लगता है कि जी नींद आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हाँ मैं वाकई में लगता था कि मैं शायद सोती नहीं हूँ। और बाकी फैमिली मेंबर्स, मैं जॉइंट फैमिली में रही काफ़ी अरसा, और वहाँ भी मेरे जो बाकी फैमिली मेंबर जॉइंट फैमिली में थे तो वो यही कहते थे कब सोती है। तो मैं बच्चों का टाइम बच्चों को देती थी और अपने शौक अपने बिजनेस के लिए जो नींद थी वो मैंने कुर्बान की है। और हकीकतन हम अ, अपनी नींद जो कि अपना फैमिली टाइम कंप्लीट होता था, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों का होमवर्क, बच्चों का स्कूल, बच्चों का एक्स वाई जेड, घर का काम, घर की जिम्मेदारी, खाना, हस्बैंड, सब सब चीज अपने टाइम पे करते थे। और जब सब सो जाते थे उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता था। हाँ ये पता था कि सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ये मेरा टाइम होता है एग्जीबिशंस का। तो
लॉन्ग टाइम फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा सबको पता होता था कि ये अवेलेबल नहीं होगी। और उस दौरान मेरे हस्बैंड काफ़ी ये सारी चीज़ें बच्चों का पीछे सब कुछ तैयार होता था, खाना पीना देना, टाइम उनको बच्चों को देना, वो अपने ऑफ टाइम होता था उनका, तो वो करते थे मैनेज। लेकिन घर में रहते हुए खवातीन कर सकती हैं, ये कोई कहे कि नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने अकेले ये सब कुछ फेस किया और सब कुछ किया, तो मैं नहीं समझती कि कोई ना कर सकता हो, क्योंकि मैं कोई सुपर पावर नहीं हूँ, मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ। और हर शख्स कर सकता है, मैं खाली खवातीन के लिए नहीं कह रही हूँ ये बात। अ, लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, और कभी भी किसी काम में सबसे ज़्यादा जो मेरी अपने बच्चों को भी कोई चीज़ मैं बात करती हूँ, कभी सिखाती हूँ, जो मेरी एक सबसे ज़्यादा, कभी किसी काम में शर्म महसूस ना करो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से कभी ना घबराएं, सबसे पहली चीज़ मेहनत से कभी ना घबराएं, और किसी काम में शर्म महसूस न करें। जब आप शाय फील करते हैं ना, तो आप कोई भी चीज़ को फेस नहीं कर सकते, आप अपने प्रॉब्लम्स को ही फेस नहीं कर सकते, तो आगे से आप किसी और चीज़ को, अपने प्रॉब्लम्स, अपने घर, अपने साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं, क्योंकि आपने खाली ये नहीं है कि आपको फैमिली का सामना करना है, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आपका नेबर्स हैं, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे लोग हैं, बच्चों की टीचर्स हैं, बहुत सारे लोगों को आपको जवाबदेही करनी होती है। तो सबको जवाबदेही आपने ही करनी है। बस ये है कि अपने ऊपर एतमाद रखें। जी, बिल्कुल। हम हमारे यहाँ तो क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन या इवन मेल्स भी बहुत सारे काम जो हैं वो इसलिए नहीं स्टार्ट कर सकते हैं कि उनको बहुत सारी बातें सुननी हैं, और उसमें सबसे जो ज़्यादा बातें उनको सुननी पड़ रही होती हैं वो अपने ही फैमिली मेंबर्स हैं, अपने ही मोहल्ले वाले लोग हैं, जो उनको वो काम करने के जो है वो बहुत सारे ताने उनको सुनने पड़ते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल आंखें बंद करके अपना काम स्टार्ट कर देना है, और थोड़े अरसे के बाद वही लोग आपको आपसे पूछेंगे कि आपने ये काम कैसे किया। तो सिर्फ जो है वो, हाँ, वो आपसे आके लर्न करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें भी बताओ कि आपने ये काम किस तरह से कर लिया था। तो आपने जो है वो बिल्कुल इन सारी बातों को इग्नोर करके अपना जो है वो काम स्टार्ट करना है, और इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद आप खुद भी बाकी सबको सिखाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, निकत, तो वो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो फीमेल्स अपने घर में कर सकती हैं? कौन से ऐसे कुछ कुछ आइडियाज़ जो आपके ज़हन में हों कि फीमेल्स इनसे अपने छोटे से स्टार्टअप्स जो हैं वो घरों में स्टार्ट कर सकती हैं? तो बड़ा सिंपल सा है, आजकल सबसे ज्यादा तो जो खवातीन को सबसे इजी कपड़े, रेडीमेड सूट्स मिलते हैं, ठीक है, रेडीमेड सूट्स होते हैं, अनस्टिच सूट्स होते हैं, वो ऑनलाइन आप सेल कर सकती हैं, पेज बनाए हैं अपना, व्हाट्सएप आप यूज करें। सेकंड, होम अप्लायंसेस, सबसे ज्यादा होम अप्लायंसेस ही, सॉरी, किचन अप्लायंसेस, बेसिकली किचन यूटेंसिल्स जो होते हैं आपके डेली वेयर के जो सामान होता है, मतलब ये चीजें ऐसी हैं। सेकंड, आप एक होता है छोटी मोटी, आप क्रीम, लोशन, बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप पैकेजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत, आप किसी भी सब्जेक्ट को एक पकड़ लें, कि मैंने हाँ, किस पे काम करना है, मैंने कपड़ों पे काम करना है, आप एक मार्केट जाएं, आप वहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब कुछ स्टॉक खरीदते रहे, मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, उससे मैं इंकार नहीं हूँ, ठीक है, बस उससे पहले आपकी वर्किंग होनी चाहिए, आपको सब बेस तो पता हो एटलीस्ट कि आप अगर किसी फील्ड में, किसी भी चीज में काम करना चाह रहे हैं, आप पहले खुद फैसला करें कि आपने किस सब्जेक्ट पे काम करना है। आपने फूड पे काम करना है, आप रेडीमेड फूड, फ्रोजन फूड, आप फ्रोजन फूड है वो, उस पे काम कर सकते हैं, बेकिंग आइटम पे काम कर सकते हैं,
बहुत बहुत सारे। और ये मैं सिर्फ खवातीन के लिए नहीं कह रही, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि खाली ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, लड़के मर्द ये सब कोई भी कर सकता है काम। काम जरूरी नहीं है, क्योंकि देखें अभी जो कोविड में सिचुएशन थी, जिसमें मेरे नहीं ख्याल के शायद मैं कहूँ हजारों लाखों लोग गए थे, बहुत ज्यादा। तो उस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग इसी टेंशन में भागते रहे कि क्या करना है क्या करना है। तो इस सिचुएशन में मैंने यही था ना, सबसे यही कहती थी कि आप सबसे बेहतर यही कि आटा ना लें। मेरा उस वक्त भी यही फोकस था, और माशाल्लाह उस दौरान भी मैंने यही चीज की कि मैंने उस दौरान भी सिखाया काम लोगों को, और उन्हीं की प्रोडक्ट को आगे मार्केट किया। तो बहुत सारी चीजें हैं आप जिन पे काम कर सकते हैं। आप कॉस्मेटिक्स पे काम कर सकते हैं, आप कपड़ों पे काम कर सकते हैं, आप फूड पे काम कर सकते हैं, आप डेकोर आइटम पे काम कर सकते हैं। अगर लाइक आप मेरी तरह क्राफ्टर हैं, तो आप अपनी हैंडमेड प्रोडक्ट्स कोई भी आप हैंडमेड कार्ड्स होते हैं, हैंडमेड गिफ्ट बास्केट्स होती हैं, ज्वेलरी है, मतलब ये मतलब मुझसे के लिए चीजें चल रही हैं मार्केट में। आप उस हिसाब से अपनी चॉइस की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू, आपने इतने सारे बिज़नेस आइडियाज़ बताए और उनमें से जो भी जिसको जो भी पसंद है बस उसने वो आइडिया लेना है और उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है। और अक्सर आपके ज़हनों में आ रहा होगा कि हम कहाँ से जो है वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करें, उसको कैसे स्टार्ट करें। तो ये सारे जो है वो जो आपके क्वेश्चंस हैं कि ये काम हमें किस तरह से करना चाहिए और हम कैसे कहाँ से चीज़ें खरीदें, कैसे बनाएं, कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करें, कहाँ से आइडियाज़ लें। तो इसके लिए मैंने निगत से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक जो है वो ग्रुप क्रिएट कर लें जहाँ पे सारे उनको ज्वाइन कर सकें और उनसे लर्न कर सकें। तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज निगत ने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें कुछ बेसिक कोर्सेज हैं, कुछ एडवांस कोर्सेज हैं। उसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से सीख सकते हैं कि कैसे आपने जो है वो काम स्टार्ट करना है। आप अपने आइडियाज़ भी लेके आ सकते हैं जिनको हम रिफाइन करेंगे। और आपके पास अगर कोई आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको नहीं समझ आ रही है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप आपके सामने आपको डिफरेंट आइडियाज़ देंगे कि आप इन आइडियाज़ को लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। निकट जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो ख़वातीन हैं वो जो पढ़ी लिखी हैं वो तो बड़ी जल्दी सोशल मीडिया को समझ लेती हैं, पेजेस क्रिएट करने, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह काम करना है, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, उनको आंसर कैसे करना है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ये चीज़ें नहीं समझ सकती हैं, उनको बिल्कुल भी आईटी की नो हाउ नहीं है। तो वो तो अभी तक फेसबुक को जस्ट चीज़ें देखने के लिए यूज़ कर रही होती हैं, उनको भी ये आइडिया नहीं है कि फेसबुक पे आप बिजनेसेस भी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी इस ग्रुप में क्या कोई बेसिक आईटी की भी चीज़ें होंगी जिसमें ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप फेसबुक बुक को क्रिएट करें, कैसे आप इंस्टाग्राम पे जाएं, कैसे आप डिफरेंट एड्स कैसे लगाते हैं, ओएलएक्स पे कैसे जाते हैं। क्या इन चीज़ों की भी जो है वो होगी, हेल्प होगी आपके ग्रुप में? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ये बेसिकली हमने ग्रुप बनाया ही इसीलिए है कि आपको माशाल्लाह आपके होते हुए आईटी के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो खुद माशाल्लाह इन सब सारी चीज़ों को डील करिएगा इंशाल्लाह। और हमने सब कुछ प्लान किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को हम इसमें कि आपने फेसबुक पे ऐड फेसबुक पे सबसे पहले आपने पेज कैसे बनाना है, फेसबुक में ऐड किस तरह से हमने करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, हमने अपने पेज की रीच किस तरह से बढ़ानी है। और खाली फेसबुक नहीं, जस्ट नॉट फेसबुक, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम है, ओएलएक्स है, दराज है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसपे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यही मैं बता रही हूँ कि सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पे अपना पेड एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको तरीका सिखाया जाएगा, आपको किस तरह से किस वक्त में किस टाइम में क्या चीजें बनानी है। ये सारे प्रोग्राम हमने डिजाइन किए हुए हैं।
और जो ये सारे एक डिटेल्ड टॉपिक है, मतलब अगर हम इस टॉपिक पे अभी बात करने बैठे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम शायद 10-15 मिनट में इसको कवर कर सकें। तो इतनी कितनी हमें 2-3 घंटे किसी टॉपिक बातों में जब हम कभी बात करते हैं ऑन कॉल तो यही होता है, घंटों हमें गुजर जाते हैं और नहीं पता चलता। तो सेम ये डिस्कशन है बाकायदा, समझना समझाना ये सारा एक प्रोग्राम है हमारा। तो हम मैं इस सबसे जो भी सीखना चाहते हैं, यंग जो भी लर्नर्स हैं बिजनेस के हवाले से, खाली हम इसमें आपको बिजनेस लर्निंग नहीं सिखा रहे, इसमें हम आपको बिजनेस आपका आइडियाज आपको दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको उसका बिजनेस बताएंगे कि वो क्या है, उसको उसका प्रोडक्ट आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमने प्रोग्राम डिफाइन किया हुआ है सब कुछ। जैसे ही आप लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं बता के तो मैं आपको हर चीज़ में आपको प्रोग्राम वाइज बताते जाते हैं कि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको कहाँ से किस तरह से सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप भले आप कराची में हो, मैं खाली कराची से नहीं, इतना आवाज़ कश्मीर में है लेकिन हमारे कनेक्शन है माशाल्लाह, हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी तो उसको अवेलेबल होगा उसका प्रोडक्ट उसका डिज़ायर होगा। तो बस ये है कि सबसे पहले आपने ज्वाइन करना है हमारा ग्रुप, और उसके बाद आप वहाँ से अपना सिलेक्ट करें सब्जेक्ट और उसके साथ 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 जी। आपको बिल्कुल, इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, जिसमें प्रोडक्ट मेकिंग से लेकर प्रोडक्ट सेलिंग तक के डिफरेंट जो हैं वो कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जाएँगे, और उसमें आपको जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक के कोर्सेज़ सिखाए जाएँगे। तो आप ये ज़रूर जॉइन करें। और स्पेशली मैं उन फीमेल्स को कहूँगी कि जो अभी तक उनके जो है ना एक डर सा है, एक फ़ियर है कि भई हम आईटी का फ़ियर बड़ा होता है, और जो नहीं यूज़ टू होते गैजेट्स के, उनको बड़ा डर लगता है किसी भी गैजेट को यूज़ करते हुए। तो और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए, तो इस ग्रुप में जो है वो डर जो है वो इंशाल्लाह निकाल देंगे हम लोग, और आप जो है वो बिल्कुल फियरलेस होकर अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। सिर्फ यही, जैसे आपने पहले भी बताया था कि एकदम से रिजल्ट्स हर चीज़ के नहीं मिलते। हम कहते हैं कि बस आज हमने स्टार्ट किया और कल ही हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू कर दें, या पहली दफ़ा ही जैसे ही हमें कस्टमर से कुछ जो है बुरे रिस्पॉन्सेज आते हैं तो हम एकदम से सब कुछ छोड़ के, काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि बस अब नहीं करना आगे हमने। तो उसमें ये सारी आपकी काउंसलिंग, आपकी हेल्प, कि आप किस तरह से कैसे डीलिंग्स करें, कैसे आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें। और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि निगत ने बताया कि मैं आज़ाद कश्मीर में हूँ, निगत कराची में है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं आपस में, और हम मिलके डिफरेंट जो है वो बिजनेसेस को कर रहे हैं। हमें चीज़ों की अवेलेबिलिटी निगत ने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की, मुझे बताया कि कैसे करते हैं, मेरे से सीखा कि आईटी में किस तरह से हम आईटी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अब अपनी सेलिंग को मज़ीद जो है वो उसकी रीच बढ़ा सकते हैं, वास्ट जो है वो सिटीज़ को कवर कर सकते हैं, सिटीज़ क्या कंट्रीज़ को कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच निकिता, आई होप कि सबको इस सेशन से बहुत फ़ायदा होगा, और थैंक यू सो मच, आप मेरे कहने पे आप कैमरा में आई, आपने टाइम दिया सबको, क्योंकि अगर इतनी अच्छी इतनी जेम खातून अगर छुप के काम कर रही हैं तो वो बाकी ख़वातीन के साथ तो बड़ी ज़्यादती है, जो आपसे इतना कुछ लर्न कर सकती हैं। आपके जो है वो इतने अरसे का जो एक्सपीरियंस है वो उसको बहुत ज़्यादा फीमेल्स तक पहुंचना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है और लर्न कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।